علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین، اب باری ہے گجرانوالہ کی۔ سبحان اللہ، پاکستان کا وہ شہر جو تجارت کے حوالے سے، انڈسٹریز کے حوالے سے بڑا نام رکھتا ہے، اور ہمارے ذہنی آزمائش میں بھی ہم نے دیکھا کہ گجرانوالہ سے جب بھی اسلامی بھائی آئے ماشاءاللہ ایک اچھے پوائنٹ تک پہنچتے ہیں، اچھی کارکردگی لے کر آتے ہیں، اور آج ماشاءاللہ ان کا فائنل سلیکشن ہے۔ پہلے گجرانوالہ ہماری ٹیم گئی، وہاں جا کے ہماری مجلس نے 12 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے۔ کیسے سلیکٹ کیے، آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مکرم علی ہے تاریخ۔ مکرم بھائی کہاں سے تشریف لائے آپ؟ میں گجرانوالہ سے۔ گجرانوالہ سے۔ جی۔ مکرم بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بی ایس آنر فزکس میں کر رہا ہوں، 2 سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب 3rd سیمسٹر سٹارٹ۔ مکرم بھائی بی ایس آنرز کر رہے ہیں فزکس میں، اور یہاں پر زی نیوز میچ آڈیشن کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے مدنی چینل کے یہ زی نیوز میچ کے پہلے ایپیسوڈ دیکھے ہیں؟ جی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، علم نور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گجرانوالہ آڈیشن ذہنی آزمائش سیزن 11 الحمدللہ پیپر چیکنگ کا ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ وہ مکمل ہوا۔ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں، اورل ٹیسٹ کے لیے ان کے نام پکارے جائیں گے۔ آپ آگے تشریف لے آئیے گا۔ محمد فیضان ولد عطا محمد، حسنین ارشاد ولد ارشاد احمد، کلیم احمد ولد محمد شفیق، جگر پڑے گا یہ نہ کم وہ مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھال تجھ کو علم ہے۔ نوید بھائی جامعۃ المدینہ کے طالب العلم ہیں۔ نوید بھائی، گھر سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ رہتا ہے اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جتنے وہ قدم چل کے جائے گا اتنے اس کو نیکیاں عطا کی جائیں گی، درجے بلند ہوں گے اور گناہ معاف ہوں گے۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ۔ قاسم بھائی آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں؟ کاموں کی صدر، اب یہ بتائیے پاکستان کی قومی ایئر لائن کا نام کیا ہے؟ پاکستان پی آئی اے۔ عثمان بھائی کی بوتیک شاپ ہے، اور اب ڈی کام کر رہے ہیں؟ کر لیا میں نے، کر لیا۔ ڈی کام کسے کہتے ہیں؟ ڈپلوما ان کامرس۔ اچھا عثمان بھائی، حدیث مبارک میں طاقتور کسے کہا گیا ہے؟ حدیث مبارک میں طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے کہ جو غصہ آنے پر اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ مرحبا، آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہی شمع کے دعا نہیں۔ عثمان بھائی یہ بتائیے کہ اس سفر اور مظفر میں بہت بڑی ہستی کا اور شریف آتا ہے، وہ کون ہے؟ داتا علیہ جولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ بھائی آپ کی تعلیم بی اے ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلامک ایجوکیشن بھی ہے آپ کی؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہوں، جامعۃ المدینہ میں کس سال میں ہے؟ سابعہ میں۔ دعوت اسلامی کا وہ کون سا شعبہ ہے جہاں پہ حفظ و ناظرہ پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسۃ المدینہ۔ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ کا ایڈریس پتہ آپ کو؟ فیضان بھائی مڈل کر چکے ہیں اور جی۔ درس نظامی کر رہے ہیں۔ جی۔ درس نظامی کس سال میں آپ؟ درجہ سادسہ میں۔ آپ مجھے مدنی چینل کے کوئی سے 3 پروگرامز کے نام بتائیں۔ ذہنی آزمائش، مدنی مذاکرہ، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں۔ پاتریل بھائی ولد عرفان یوسف
درس نظامی میں کل کتنے سال ہوتے ہیں؟ ہماری 6 سال ہیں. دعوت اسلامی کے جس شعبے میں درس نظامی کرائی جاتی ہے اس شعبے کا نام کیا ہے؟ جامعۃ المدینہ. فاطمہ بھائی آپ یہ بتائیے فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ ایسا فرض ہے کہ کوئی ایک بھی ادا کر لے گا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے. جس نے کسی مریض کی عیادت کی اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس پاک میں ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو 75,000 فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں اور جب تک وہ اپنے گھر نہیں لوٹتے اس پر سایہ کیے رہتے ہیں. وہ رحمت کو تزن رہتے امیر ہیں. علیہ سنت کی کسی بھی 3 کتابوں کے نام بتائیں، رسالوں کے یا کتابوں. نماز کے احکام اور بریلی سے مدینہ اور فضان سنت. ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں. کلیم احمد ولد محمد شفیق، مڈل آپ نے کیا ہے، جامعۃ المدینہ میں آپ پڑھتے ہیں. آپ کی کلاس کیا ہے؟ اولا. خلال کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فی الحال نیم کی لکڑی کا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ مسوڑوں کے فوائد. تربوز کب کھانا زیادہ مفید ہے؟ وقاص علی، آپ MSc IT کر رہے ہیں اور آپ ٹیچر بھی ہیں. آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک نبی کا واقعہ بڑا مشہور ہے اور نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. دعوت اسلامی کے ایک مفتی صاحب نے تفسیر قرآن لکھی ہے، ان کا نام آتا آپ کو؟ مفتی قاسم ابتاری دامت برکاتہم القدسیہ. اوپ کا تھوڑا سا کنسیپٹ بتائیں گے، اوپ کا ایبریویشن کیا ہے؟ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. بیسیکلی اس میں کلاسز انوالو ہوتی ہیں. ہم نے اپنے پروگرام کو انہیریٹنس کسے کہتے ہیں؟ کس کو؟ انہیریٹنس. انہیریٹنس پیرنٹ کلاس سے ڈفرینٹ ویریبلس کو پک کر کے جو چائلڈ کلاس ہے وہاں پر لانے کو انہیریٹنس کہا جاتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی سما کے ہے کہ اس کا مقطع سنائیں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. قاسم علی کہاں سے درس نظامی کر رہے ہیں؟ دارت المصطفیٰ سے. شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ محمد اقبال کو. کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے صاف کرنا کیسا؟ یہ مکروہ ہے. ظالم کے شر سے بچنے کے لیے بسم اللہ شریف کا کون سا وظیفہ بہتر ہے؟ ظالم سے بچنے کے لیے 50 مرتبہ بسم اللہ اول آخر درود شریف پڑھ کے. کون سی نعت آپ کو آتی ہے؟ سنائیں. لم یاتی نذیر و کفی نظرین. سناتے رہیں. مسلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. حسن رضا ولد اقبال اتاری. اقبال بھائی آپ گکھڑ میں رہتے ہیں. جی. پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر 5 شہر ہیں، سیالکوٹ وغیرہ، گوجرانوالا. سب سے بڑا شہر پاکستان کا؟ ارسلان بھائی آپ کا شہر وزیر آباد ہے اور آپ FA کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کے کوئی سے 4 شعبہ جات کے نام سنائیے. ائمہ مساجد، رابطہ بالعلماء، ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ. ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا، اس کا جدول سنائیں گے مجھے، کیا ہوتا ہے؟ ہفتہ وار اجتماع میں سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہے، اس کے بعد بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد ذکر وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر صلاۃ و سلام اور پھر نماز عشاء. حمزاد کون سی زبان کا لفظ ہے؟ حمزاد فارسی زبان کا لفظ ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ ظلم میں. احسان بھائی آپ نے مڈل پاس کر لیا ہے؟ جی. وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پورے دنیا پر حکومت کی تھی؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ نماز کی 6 شرائط. کیا دعا کرنا واجب ہے؟ دعا کرنا واجب ہے. احمد حسین بھائی ایم انگلش کیا ہوا آپ نے اور آپ ٹیچر ہیں. کون سے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. سوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو شیاطین سے حفاظت ہوگی، اچانک موت اور تمام جو ہے وہ مصیبتوں سے انسان جو ہے محفوظ رہتا ہے. مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ ظلم میں. محمد حسیب بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ لاہور میں کوئی سے 3 بزرگان دین کے مزار کے نام سنائیں. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر مکی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور غازی المدین شہید. اسلام آباد میں ایک بہت مشہور بزرگ کا مزار شریف ہے، کون سے مزار ہے؟ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی. حسیب بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں کتنی دیر سکونت اختیار فرمائی؟ مدینہ شریف میں 10 سال. جو علم سے ہو متصف، بلندیوں سے جامع
आलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। माशाल्लाह आपने देखा कि अब जितने आए थे उनमें से ये 12 सेलेक्ट होकर अब लाहौर आए हैं और इस वक्त हम लाहौर में इनके साथ बैठे हैं। बारी बारी तारुफ भी हासिल करते हैं और देखते हैं इन 12 में से वो कौन 4 हैं जो सेलेक्ट होंगे फाइनल राउंड के लिए। हो सकता है नाजरीन के जहन में सवाल आए कि ज़हनी आजमाइश के मंच पर तो हमने 3 देखे हैं, बेसिकली हम 4 इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए तो स्टैंड बाई के तौर पर एक इस्लामी भाई हों और अल्लाह ना करे कोई ना आ सके तो वो रेडी हों, इसलिए हम 4 सेलेक्ट करते हैं। जी हुजूर अपना नाम बताएंगे। सईद मेरा नाम अहमद हुसैन। अहमद हुसैन क्या करते हैं आप? सईद मैं जो है टीचर हूँ। टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं, कौन से स्कूल में? ये जामिया में मेरा जो है ना वो उला में मैं खुद पढ़ रहा हूँ, दर्स निज़ामी कर रहा हूँ और जामिया में जो है ना मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, खुद उला पढ़ भी रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। वैसे इंग्लिश में आपने क्या किया है? मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ। एमए इंग्लिश किया है, माशाल्लाह। तो फिर दर्स निज़ामी क्यों कर रहे हैं भाई? इतनी अच्छी तालीम तो हासिल कर ली आपने। नहीं वो तो है दुनियावी लिहाज से है ना, उखरवी लिहाज से जो है वो उखरवी लिहाज से दर्स निज़ामी है। सुभान अल्लाह, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है। ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने की कोई 3 फजीलतें बयान कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बंदा एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जो है 10 रहमतें जो नाजिल फरमाता है। दूसरी फजीलत में ये आता है कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जुमातुल मुबारक के रोज़ 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके जो है 80 साल के जो है गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बंदा मुसाफिर कब बनता है? शरई सफ़र कब होता है? ये तकरीबन जो है वो 57.5 मील सफ़र हो, तकरीबन जो है 92 किलोमीटर बनता है ये। तब ये जो है कितने दिन के लिए? ये 15 दिन या शहरी मसाइल जो है, हाँ जी, मुसाफिर जो है 15 दिन या इससे ज़्यादा का जो है ना वो सफ़र हो तो सफ़र होता है। जी नहीं, ये उसका सफ़र में कौन सी नमाज कसर होती है? सारी नमाज जो है कसर हो गई। अगर वो 92 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तो कसर से मुराद ये है कि जो 4 रकत वाली नमाज है उसको 2 करके पढ़ना। मगरिब में क्या करेंगे? मगरिब में भी 2 पढ़ेंगे। 3 की 2 पढ़ेंगे जी, 2 ही पढ़ेंगे। आप उला में है, ऐसा नहीं है, मगरिब पूरी पढ़ेंगे। हालांकि आपने पहले ही जवाब दिया कि 4 रकत वाली 2 होगी तो 3 रकत वाली 1.5 नहीं होगी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, मैं निसार तेरे वो सुखन है कि जिसमें। अच्छा, शाहरोज क्यों आए दरस निज़ामी भाई? बस पिछले 3 सालों से ज़हनी आज़माइश देख रहा था तो उम्र की वजह से सेलेक्ट नहीं हो सकते थे। अच्छा, उम्र नहीं, वो आता ही नहीं था, लेकिन अब उम्र हो गई तो अब उम्र हो गई, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे। क्या करेंगे ज़हनी आजमाइश में आगे बढ़कर? कहाँ तक जाएंगे अगर जीत गए तो? इंशाल्लाह मदीने जाएंगे। मदीने जाएंगे। अच्छा, वो कौन सा दिन है जिसको क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? तो रबीउल अव्वल 12। वो कौन सा दिन है जिस दिन एक नेकी करें तो 70 नेकियों का सवाब मिलता है? जुमुआतुल मुबारक। दुल्हन की तरह भी जुम्मे को उठाया जाएगा। अगले भाई को दीजिए जरा। जी, क्या नाम है आपका? हाफिज कासिम अली मुस्तफ़ाई। माशाल्लाह, क्या कर रहे हैं आप? दर्स निज़ामी। कहाँ से कर रहे हैं? दारतुल मुस्तफ़ा से। दारतुल मुस्तफ़ा से, माशाल्लाह। अगर आपको बिलफर्ज आप सेलेक्ट हो गए तो छुट्टी मिल जाएगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात कर ली है साथ? जी। तैयारी कैसी करके आए? अच्छी है। कायनात में सबसे पहला गुनाह क्या हुआ था? कायनात में सबसे पहला गुनाह कत्ल हुआ था। काबिल ने जो हाबिल का कत्ल किया था। कत्ल से पहले एक गुनाह हुआ था। शैतान ने हसद किया था जो उनसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। हसद हुआ जी, तकब्बुर हुआ, ठीक है ना। शैतान ने सजदा करने से इनकार किया जी, फिर कत्ल हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि फरिश्तों को हुक्म दिया गया जी, शैतान ने क्या जवाब दिया कि ये मट्टी का बना हुआ, मैं आग का बना हुआ हूँ, तो आग मट्टी को कैसे सजदा करे? आग जो उनसे वो मोतबर मट्टी से, यानी उसने अपने आप को जो है वो बेहतर कहा, अना खैरुम मिन। जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले सजदा किसने किया था? हजरत जिब्राइल अमीन ने। जी, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने। ये सवाल करें। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का नाम इरशाद फरमाएं। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह। जन्नत जिनका लक़ब है? आपकी साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का। मुअज़्ज़िन रसूल किसे कहा जाता है? सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला का जिक्र किया आपने, खातून जन्नत का। तस्बीह फातिमा किसको कहते हैं? 33 मरतबा सुभान अल्लाह
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, इसका मक्ता सुना दें। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जी, अगले भाई को माइक दें। जी, नाम बताइए। एहसानुल्लाह अत्तारी। माशाल्लाह। हज किस दिन होता है? 10 ज़िलहिज्जा। 10 ज़िलहिज्जा को तो ईद होती है। 9 ज़िलहिज्जा को। कौन सा कलाम सुनाएंगे? अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह ला की, व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैद बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। अगले भाई को माइक दें। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल फातिर अत्तारी। गिब्ता या तनाफुस किसको कहते हैं? ये हसद का ये एक दर्जा है कि इंसान ये चाहते अगर चाहे कि ये चीज़ इसी किसी दूसरे के पास भी रहे और ये मुझे भी अता हो जाए। कलाम कौन सा याद करके आए हैं? नेमतें बांटता जिस्म तो जीशान गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे घर क़यामत में मान गया, कयामत में अगर मान गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान कादरी। ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की तामीर फरमाई वो कहाँ फरमाई? मस्जिद कुबा, मदीना शरीफ। फतेह मक्का कौन से साल हुआ था? नबी पाक ने अपनी मुबारक जिंदगी में कितने हज फरमाए ऐलान नबूवत के बाद? 10। प्यारे आका ने जिंदगी में एक ही हज फरमाया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान अत्तारी। फैजान, क्या करते हैं? दर्स निज़ामी कर रहा हूँ। कौन से दर्जे में? दर्जा सादिसा में। कौन से जामिया में? जामियातुल मदीना फैजान मदीना गुजरांवाला। ये बताइए जनाब के दौरान खुतबा, जब जुम्मे का खुतबा दिया जाता है तो बातचीत करने का क्या हुक्म है? दौरान खुतबा जब खुतबा दिया जाता है उस वक्त बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुतबा सुनना ये वाजिब है। बातचीत करना क्या है, हुक्म क्या है उसका? बातचीत करना जायज नहीं है। दुआ 3 हालात से खाली नहीं होती, वो 3 कौन सी हालतें हैं? हदीस पाक में है कि दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। या तो उस दुआ के जरिए उस बंदे का गुनाह बख्शा जाता है, या वो बंदा उस दुआ के जरिए दुनिया में ही फायदा हासिल कर लेता है, या वो दुआ आखिरत में उसकी भलाई के लिए जमा कर ली जाती है। कि बंदा जब अपनी उन दुआओं को देखेगा जो दुनिया में मुस्तजाब यानी कबूल ना हुई थी, तो वो तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी कबूल ना होती, सब यहीं के लिए जमा रहती। अशार कौन से याद है भाई? अशार 12 कलामों में से जो सब मर्जी सुन ले आप। सारे याद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा, आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इसका मक्ता सुनाएं। कब्र में यूं ही नकीरो नहीं आया उनकी, है गुलामी की सनद देख लो अत्तार के पास। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, तुम ही अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल मैं अल्लाह। बचना चाहता हूँ हाय फिर भी बच नहीं पाता, गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह। मक्ता सुनाएं। फंसा जाता है दुनिया की मोहब्बत में दिले अत्तार, करो अत्तार से ये दूर आफत या रसूल अल्लाह। अगले भाई को माइक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसीब। दाता हुजूर की मशहूर किताब का नाम बताएं। कश्फुल महजूब। दाता हुजूर के दरबार पर एक बहुत ही अजीम हस्ती ने 40 दिन वक्त गुजारा, वो कौन है? हुजूर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनका मज़ार कहाँ है? अजमेर शरीफ शहर में। उनके हाथ पर कितने गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया? 90 लाख। मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 77 सब्ज गुंबद देखकर। अगले इस्लाम भाई को माइक। जी, क्या नाम है आपका? अरसलान अली अत्तारी। अरसलान भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। हमारे शजरे में से 5 बुजुर्गों के नाम बता दें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहले, इसके बाद हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत इमाम हसन हुसैन, और इसके अलावा हजूर गौसे आज़म का नाम है, इमाम अहमद रज़ा खान का नाम है, सैयदी कुतुब मदीना का नाम। मदीना कौन थे? ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। कहाँ है मज़ार उनका? इनका मज़ार मदीना शरीफ में है। कितने साल उन्होंने मदीने में गुजारे? खुदा उसको किस शान से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, दमे नज़आ जारी हो मेरी ज़बां पर, मोहम्मद मोहम्मद बराए मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। अगले भाई को माइक दें। इमरान अख्तर अत्तारी, मजलिस आईटी। अमीर अहले सुन्नत पे कौन से 3 रसाइल के नाम सुनाए? फिजान जुमुआ और अनोखा। अच्छा भाई, आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? वो कमाल हुस्ने हुजूर है। एक ही सुनाएंगे? 12 सुनाने वाले अब तो आ गए। अच्छा चलें, इसका मक्ता सुनाएं। करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा नान है।
जी, नाम बताएं। मोहम्मद नवीद अत्तारी। नवीद भाई, आप कौन से दर्जे में हैं? जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना गुजरांवाला में 6ठे दर्जे। ताबूत सकीना का कॉन्सेप्ट बताएं, क्या था, क्या कुछ था उसमें? ये ताबूत सकीना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के इसके अंदर मुतबर्रिक जो अज्जा थे, जैसे असाए मूसा और इसी तरह और भी अंबिया के इसमें जो है ना मुतबर्रिक कौन चीज़ें से थी। नबी थे जो मछली के पेट में रहे? यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में क्या ऐसा अजीम वाक़या हुआ? पानी का अजाब आया था और सारी दुनिया तबाह हो गई थी, सिवाय उसके जो किश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। नूह अलैहिस्सलाम ने कितने सालों तक अपनी कौम को तबलीग की? 950 साल। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इस्यां की सजा, अब होगी यहाँ रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, जब बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मक्ता सुनाए। है बुलबुले रंगी रजा, यहाँ तूतिए नगमा सरा, हक ये के है, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले भाई को माइक दें। हाफिज मोहम्मद वक्कास अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना गुजरांवाला, दर्जा खामसा। आप हाफिज भी हैं? जी, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। किस आयत को बड़ी आयत वैसे अहादीस में कहा गया? आयतल कुर्सी को, ठीक है ना? अच्छा, अशार में क्या सुनाएंगे? जो भी आप सुनना चाहें आला हज़रत के कलाम में से। चले जनाब, ये शेर सुना तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। कर चुकी रिफ़अते काबा पे नजर परवाज़। चलें अगले भाई को दें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वक्कास अत्तारी। मोहम्मद वक्कास अत्तारी, क्या करते हैं आप वक्कास भाई? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, क्या कर, कहाँ टीचिंग करते हैं? मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ। स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट का क्या बनेगा भाई जब आप ज़हनी आजमाइश में आ जाओगे? स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स मौजूद हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी फेजेस चल रहे हैं हमारे, तो उनकी प्रिपरेशन हो रही है। इसके अलावा भी कुछ करते हैं आप टीचिंग के अलावा? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे आ गए आप ज़हनी आजमाइश में टीचर? मुझे पता था ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा, तो दो बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि ज़हनी आजमाइश में आने की वजह बेसिकली मदनी चैनल की जो बुनियादी बनाने की वजह है वो ये है इस्लाह उम्मत और इस्लाह इल्म के ज़रिए है। तो मदनी चैनल बहुत सारे सिलसिलों के ज़रिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, मदनी मुज़ाकरा है, ज़हनी आजमाइश है। तो उसके ज़रिए घर बैठे हमें इल्म दीन सीखने का मौका मिलता है। तो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन मैं आना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि जो पूरा टेन्योर रहेगा इसमें सिलेबस मिलेगा तो उसको पढ़ेंगे। फायदा हुआ आपको तैयारी करते में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने आते हुए भी नियत की थी और जब आप इधर से आ रहे थे मैंने एक नियत की थी, लेकिन उस नियत से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने एक सिलसिला किया था ज़ियाराते मकामाते मुक़द्दसा, वो हमें बड़ा पसंद है और उसमें आपने दीगर औलिया इकराम, अंबिया इकराम और सहाबा इकराम की मज़ारात की ज़ियारत की थी। तो हमारा भी दिल करता है कि उन बारगाह में हाज़िर हों, लेकिन अल्लाह पाक कादिर अगर चाहे तो हमें बुला ले। लेकिन मैंने नियत की थी और ये वजह है नियत करने की कि अगर हम जा नहीं सकते तो जो गए हैं उनसे मुआनका भी करना है और मुसाफहा भी करना है। चलो मुआनका तो पहले कर लें, सिलेक्शन हो ना हो, चले इंशाल्लाह आ जाए। अंधेरे ज़न्नो शक के शागराग इल्म में इल्म नूर है। आप ये इरशाद फरमाइए उस्ताद साहब कि वो कौन सी नफल नमाज है जिसके लिए सोना जरूरी होता है? तहज्जुद। बाकायदा तौर पे तरावी की जमात कब से शुरू हुई? हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। अच्छा, नमाज तरावी का हुक्म पता है आपको क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। अच्छा जनाब, ये बताइए कि नमाज जनाजा में कितने रुकन हैं? नमाज जनाजा में 2 रुकन। अच्छा, नमाज के फराइज कितने हैं? नमाज के 7 फराइज। शराइत कितनी है? 6 शराइत। गुस्ल का तीसरा फर्ज सुनाइए। पूरे जिस्म पर पानी इस तरह बहाना कि कोई बाल खुश्क न रहे। ये सब कहाँ से सीखा आपने? मदनी चैनल से। मदनी चैनल से सीखा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कलाम कौन सा याद है आपको? वो कमाल हुस्न हुजूर है। अच्छा, इसका मक्ता सुनाए। मदह अहले दोल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है। इसके अलावा कोई 3 मक्ते और सुना दे आला हज़रत के कलाम के। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने। एक दे रजा सब चले मदीने को, आगे मैं ना जाऊं खुदा ना करे। अरे खुदा न करे।
अंधेरे ज़न्नो शक के शागराह इल्म में। जो 7, 8 या 6 इस्लाम में सेलेक्ट होने वाले हैं, पहले मैं उनके नाम लूंगा, वो आगे आएंगे, उनमें से फिर हम 4 सेलेक्ट करेंगे ताकि कम से कम उनकी हौसला अफजाई हो, नाज़रीन भी देखें कि दे आर द बेस्ट। और माशाल्लाह इसमें है हाफिज कासिम मुस्तफ़ाई, आगे आ जाए माशाल्लाह। एहसानुल्लाह आगे आ जाएं। उस्मान कादरी आगे आ जाएं। अच्छा, यहाँ मोहम्मद फैजान आगे आ जाएं। मोहम्मद हसीब आगे आ जाएं। अच्छा, मोहम्मद अरसलान भी आगे आ जाएं। मोहम्मद नवीद आगे आ जाएं। वकास आगे आ जाएं। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले। यहाँ आएंगे गुजरांवाला के वो 4 इस्लामी भाई। वाकई वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन अब तक जो मैंने शिरकत की है, बड़े कमाल के इस्लामी भाई गुजरांवाला के, और हमें वाकई जिसको कहते हैं ना कि हमें टफ डिसीजन लेने में पड़ा है। पहला सिलेक्शन है इदारतुल मुस्तफ़ा के हाफिज कासिम मुस्तफ़ाई, मोहम्मद फैजान। छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, ये बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड नजर आए मुझे और बड़ी एनर्जी है इनमें माशाल्लाह। मोहम्मद नवीद अत्तारी, माशाल्लाह नवीद भाई आ जाएं माशाल्लाह। एंड लास्ट एंड फाइनल स्कूल टीचर हैं मोहम्मद वक्कास अत्तारी, माशाल्लाह। वक्कास अरशद भाई तशरीफ लाएं। और माशाल्लाह ये 4 इस्लामी भाई सेलेक्ट हुए हैं और आपको ये सबके हाथ में दे दें माशाल्लाह कराची की आमद का परवाना। और इसमें जो हमारे निगरान होंगे, जो इस टीम को लीड करेंगे, वो हैं जनाब मोहम्मद नवीद भाई। नवीद भाई, आपने चारों की तैयारी भी करानी है और आपने डिसाइड करना है कि पहले 3 कौन से आएंगे। आपस में भी मशवरा कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले। उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म